Assalamu alaikum students. My today's topic is second short story Moti Gaj Mutiny written by Rudyard Joseph Kipling. Dear students, see page number 90. You can also see it on the screen of your mobile phone. Dear students, this story is about an elephant and his master. On one hand, the elephant was loyal, intelligent, and loving, and on the other hand, his master was a foolish drunkard. He was one of the worst mayouts or drivers. The title of this story is Moti Gaj Mutiner. Moti, as you know, is a Hindi Urdu word. It means a precious stone. Gaj means elephant, and mutiner means a person who rebels against an authority or power. Dear students, you must have read of soldiers rising and mutiny, but have you ever heard of an elephant becoming a mutiner? As I already mentioned that mutiner उस शख्स या उस चीज़ को कहते हैं जो किसी ताकत के खिलाफ खुलेआम हो जाए और उसके खिलाफ आवाज़ उठाए. Why Moti Gaj became a mutiner? What made him to become a mutiner? In order to know the answers for these questions, let's read the text of the short story. Dear students, before reading the short story, let's discuss some important points that this short story highlights. First thing is we should treat animals the way we treat our friends. These animals are our friends. We should never ill treat them. They too love us. They are our loyal friends. They express differently as we do. Second thing is we should never tell a lie. In order to hide a lie, we need to say 100 lies. This story is set in India. Once there lived a coffee planter in India. In order to plant coffee trees, coffee plants, he cleared a forest land. When he cut down all the trees, the roots and stems remained there. In order to clear the remains of the trees, he hired some elephants. The very best of all the elephants belonged to the very worst of all the drivers of mayouts. And this superior beast's name was Moti Gaj, which means the pearl elephant. He was the absolute property of his master Mayout Desa. इन सारे एलिफेंट्स में एक बहुत ही बेहतरीन, ताकतवर, मजबूत और बड़ा एलिफेंट था जिसका नाम मोती गज था. और उसका जो मालिक था देसा, वो सबसे वर्स्ट था. सबसे उन सारे एलिफेंट्स के जो मालिक थे उन सब में से बुरा था. और ये एलिफेंट जो था ये देसा की टोटल प्रॉपर्टी थी. उसके पास अगर कुछ था तो वो ये एलिफेंट था. Desa was a foolish drunkard. When he had made much money through the strength of his elephant,
he would get extremely drunk and gave Moti Gaj a beating with a tent peg over the tender nails of the forefeet. Moti Gaj never trampled the life out of Desa on these occasions. He knew that after the beating was over, Desa would embrace his trunk and weep. He would call him his love and give him some liquor which Moti Gaj was very fond of. देसा और मोती गज एक दूसरे से काफ़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन एलिफेंट जानता था कि उसका मालिक एक बेवकूफ़ शराबी था। जब उसने काफ़ी पैसा बनाया, मोती गज की ताकत से हासिल किया, तो वो हर वक्त मस्त होता था, हर वक्त पीता रहता था और हर दिन वो मोती गज अपने एलिफेंट को उसके खाम जो नेल्स थे उसके पैरों में, उसको एक टेंट पैग से, एक कुंडी जो होती है जिससे टेंट की रस्सियाँ बांधी जाती हैं, उससे मारता था। लेकिन मोती गज ने कभी एहतिजाज नहीं किया, क्योंकि वो जानता था आफ्टर द बीटिंग्स would over, his master would give him 300 pounds of green grass mixed with a bottle of liquor, and Moti Gaj was fond of it. वो इसका शौकीन था और वो ये पिटाई वगैरह बर्दाश्त करता था। Moti Gaj and Desa worked hard. Desa sat on Moti Gaj's neck and gave him orders. Moti Gaj rooted up the stumps for he owned a magnificent pair of tusks. Tusks means हाथी के जो दांत जो दिखाई देते हैं, जैसे एक उर्दू कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हाथी को कोई घास चबाने के लिए अलग दांत होते हैं, लेकिन जो दिखते हैं वो चबाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, उनको टस्क्स कहते हैं। तो इन सारे एलिफेंट्स में जो सबसे ज़्यादा काम करता था वो था मोती गज, और उसका मास्टर देसा उसके पीठ पे बैठकर उसे ऑर्डर्स दिया करता था और मोती गज ये काम आसानी से कर लेता था। While Moti Gaj worked, Desa kicked him behind the ears and called him the king of elephants. At evening, Moti Gaj would mix his 300 pounds of green with a bottle of liquor. Desa would also take a share and sing songs between Moti Gaj's legs till it was time to go to bed. कोई घर परिवार नहीं था देसा के पास। उसके पास अगर कोई प्रॉपर्टी थी तो वो ये एलिफेंट था। शाम के वक़्त वो 300 पाउंड्स सब्ज़ घास काट के उसको एक शराब की बोतल के साथ मिक्स करता था और मोती गज को खिलाता था, और कुछ शराब खुद भी पी लेता था और गाने गाता था जब तक सोने का टाइम आ जाता था। तो ये उसके रोज़ का मामूल बन गया था। Once a week, Desa led Moti Gaj down to the river. Moti Gaj lay on his side in the shallows while Desa rubbed him with a coir swab and a brick. Moti Gaj never mistook the pounding blow of the brick or the smack of the coir swab that warned him to get up and turn over on the other side. Then Desa would look at his feet and examine his eyes and turn up the corners of his mighty ears in case of sores. After inspection, the two would stand up Moti Gaj, all black and shining, waving a torn tree branch 12 feet long in his trunk, and Desa knotting up his own long wet hair. This shows that Desa cured his elephant well. वो उसका अच्छी तरह से देखभाल करता था। हफ्ते में एक बार वो उसे दरिया ले जाता था नहाने के लिए। वहाँ शेलोज में, यानी कि जहाँ पानी कम होता है, दरिया के जो ज़मीन के
किनारे के करीब जो जगह होती है वहाँ पे पानी कम होता है, उसको शैलो कहते हैं। तो वहाँ पर मोती गज लेट जाता था और देसा एंड से और कोयर स्वैब, ये एक हम कहते हैं एक सिंपल सी चीज़ होती है लोहे की बनी हुई, ये जो मतलब ये मवेशी होते हैं उनको उनकी बॉडी को, स्किन को साफ करने के लिए उसे रब किया जाता है। तो फिर पूरी सफाई करता था मोती गज की। फिर मोती गज दूसरी तरफ को बैठ जाता था, वहाँ उस तरफ से भी सफाई करता था उसका मास्टर ये देसा। इसके बाद वो उसके पैरों में देखता था कि कहीं कोई ज़ख्म ना है, नहीं तो ज़ख्म तो नहीं है। उसके कानों में देखता था, उसकी आंखें चेक करता था। और उसके बाद ये खुद अपने बाल धोता था और मोती गज इसके बाद पूरा ब्लैक बन जाता था, शाइनिंग, यानी कि बिल्कुल चमक, उसकी बॉडी जो है उस पर एक चमक सी आ जाती थी। और इस तरह से उनकी लाइफ जो थी ये बहुत ही मज़ेदार दिखाई देती थी। इट वॉज अ पीसफुल लाइफ, वेल पेड, टिल Desa felt the return of the desire to drink deep. The little amount of liquor that he got did not satisfy him. उनकी ज़िंदगी बहुत ही मज़े में, सुकून से गुजर रही थी। और फिर एक बार क्या हुआ कि देसा को महसूस हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। जो शराब उसे रोज़ मिलती थी उससे वो मुतमिन नहीं हो जाता था। He went to the planter. My mother is dead, said he weeping. She died on the last plantation 2 months ago, and she had died once before when you were working for me last year, said the planter, who knew something of Desa's ways. देसा का एक अलग तरीका था। वो फुलिश ड्रंकार्ड था और वो अपने मालिक के पास चला जाता है, प्लांटर के पास चला जाता है, कॉफ़ी प्लांटर के पास। एंड ही टेल्स हिम दैट हिज मदर इज़ डेड। वो उसे कहता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसे छुट्टी पे जाना है। तो प्लांटर ने उसे कहा कि पिछले साल भी वो मर गई थी और कुछ महीने पहले भी मर गई थी, क्योंकि देसा ने ऑलरेडी माँ के मरने पर छुट्टियाँ ले रखी थी। झूठ कहना उसकी आदत बन गई थी। तो देसा ने क्या जवाब दिया? देन इट वॉज माई ऑन्ट एंड शी वॉज जस्ट द सेम एज अ मदर टू मी, सेड देसा वीपिंग मोर देन एवर। तो देसा ने जवाब दिया कि वो मेरी चाची थी, माँ जैसी थी चाची। अब देसा और भी ज़्यादा रोने लगा। हु ब्रॉट द न्यूज़, सेड द प्लांटर। द पोस्ट, सेड देसा। तो प्लांटर ने एक और सवाल किया कि आपको खबर कहाँ से मिली? तो देसा ने जवाब दिया कि डॉग से। देयर हैजंट बीन अ पोस्ट हेयर फॉर द पास्ट वीक, गो गेट बैक टू वर्क। तो उसने बिल्कुल जवाब दिया कि एक पिछले हफ्ते से कोई भी डॉग यहाँ नहीं आया, तो इसलिए चले जाओ और अपने काम पे लग जाओ। There is plague in my village and all my wives are dying, yelled Disa, really in tears this time. तो अब देसा ने एक और झूठ बोला कि मेरे गांव में वबा चल रही है, मेरी सारी बीवियां मर रही हैं। Call Chuan, who comes from Disa's village, said the planter. He said, Chuan, no, Chuan, has this man got a wife? तो चौहान को बुलाया गया, जो उसी के गांव का एक और आदमी वहाँ पे काम कर रहा था। ही सेड चौहान, तो चौहान से पूछा गया कि क्या इस शख्स की कोई वाइफ है? ही सेड चौहान, नो, नॉट वन वुमन ऑफ आवर विलेज वुड लुक एट हिम, दे वुड सूनर मैरी द एलिफेंट। दिस वेप्ट ऑल द मोर, गो बैक टू वर्क, शाउटेड द प्लांटर। तो चौहान ने क्या जवाब दिया कि हमारे गांव की कोई भी औरत इसकी तरफ नहीं देखना पसंद ही नहीं करती है। वो एलिफेंट से शादी करेंगे लेकिन इस जैसे आदमी से शादी हरगिज़ नहीं करेंगे। तो देसा और ज़्यादा रोने लगा। तो मालिक ये प्लांटर गुस्सा हो गया और उसने ऊंची आवाज़ में उसे कहा कि आप अपने काम पे चले जाओ।
दिशा हैड एन इंस्पिरेशन। दिशा के पास एक और था, किसी आदमी को भी इंस्पायर करना। नाउ आई विल स्पीक द ट्रूथ, अब मैं सच बोलूंगा। आई हैवंट बीन ड्रंक फॉर 2 months, और एक झूठ बोला, क्योंकि वो रोज उसे कुछ न कुछ शराब तो मिलती ही रहती थी। आई वॉन्ट टू गो इन ऑर्डर टू ड्रिंक टू गेट प्रॉपरली ड्रंक, मैं जाना चाहता हूँ छुट्टी पर ताकि मैं पेट भर के पूरा पी लूँ। I will be at a distance from this heavenly plantation and shall cause you no trouble. मैं इस प्लांटेशन से ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, थोड़ा दूर जाऊंगा, और मैं आपको किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहता। A smile crossed the planter's face. प्लांटर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। देसा said he, you have spoken the truth. अब तुमने सच बोला। And I would give you leave if anyone could take care of Moti Gaj, you know that he will only obey your orders. तो उसने एक शर्त रखी कि मैं आपको जाने दूंगा अगर कोई तुम्हारे एलिफेंट का ख्याल करे, उसे चलाए, क्योंकि वो किसी और के ऑर्डर्स नहीं मानता। May God bless you, cried Disa. I shall be absent but 10 little days. After that I will return. Have I your gracious permission to call up Moti Gaj? तो उसने कहा कि खुदा आपको सलामत रखे, मैं सिर्फ 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर वापस आ जाऊँगा, और अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। This is enough for today. We will read the rest of the short story in next video. खुदा हाफिज़।